Hello everyone, welcome to the video series for class 10th Information Technology, and in this video we are going to discuss about the second session of Electronic Spreadsheet Advanced Level, and today's topic is linked data and spreadsheets. And in this video we are going to cover how we can set up multiple sheets, how we can create reference to other sheets by using keyboard and mouse, how we can create reference to other documents, what is the meaning of relative and absolute hyperlinks, and how we can how we can create hyperlinks to the sheet. So let us start today's topic. When we are talking about linking data, it means we try to connect data from one sheet to another sheet, or from one spreadsheet or to another spreadsheet, or from one spreadsheet to another document. So in spreadsheet or in OpenOffice Calc, we can have huge amount of data and different sheets. So generally when we open our spreadsheet, by default we are having three sheets. Okay, now uh, we can add more sheets to our spreadsheet also, and this can be done in multiple ways. So let us discuss first that how we can set up multiple sheets. हम अपने स्प्रेडशीट में और एडिशनल सीट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जानते हैं कि नीचे अगर आप बॉटम 3 के 3 टैब्स देखेंगे तो वहाँ पे हमें 3 शीट्स मिलते हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। लेकिन इसके अलावा भी हम अपने शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो देयर आर सेवरल वेज टू इंसर्ट अ न्यू शीट। सो द फर्स्ट वे इज़ टू सेलेक्ट insert and then sheet. So first you can go to insert menu, and from there you can select sheet option. The second way is right click on the tab and select insert sheet, and the third way is click in an empty space at the end of the line of sheet tabs. So let us discuss one by one all these three methods. So here we are having OpenOffice Calc. Here you can see that we are having three sheets, sheet 1, sheet 2 and sheet 3. So the first method is go to insert option and select sheet. This is the first method. Now it will ask you that where you want to insert your sheet, before current sheet or after current sheet. Then you will be asked to enter how many sheets you want to insert. Okay, and the default name will be this one. So suppose I want to insert after the current sheet. Okay, so this one is selected, so the new sheet will be inserted after this one. So accordingly you have to choose. Okay, now if you want to change the name of your sheet, you can change here also. If you want to keep it sheet 4, then just let it be sheet 4. Okay, and when I will press OK, here you can see that sheet 4 has been inserted after sheet 1, because sheet 1 was selected and I have selected that new sheet should be inserted after the current sheet. This is the first way. Now second way. Second way is you can just click on right click here. Okay, and just select insert sheet option. Okay, now you will have the same dialog box that we have seen just now. So here you can see the same dialog box is opening here again. Now sheet 4 has been selected. So if you will select before current sheet, now the new sheet 5 will be inserted before sheet 4. Let us do this one. So here you can see that sheet 5 has been inserted before sheet 4. Now another way to insert a new sheet is that just click here. Okay, just left click here and it will give you this dialog box again. Okay, so again this has been asked to you. You can select as per your requirement and just press OK. A new sheet will be inserted. So we are getting the same dialog box again and again you by three different ways. One is going to insert menu and choosing sheet option. Another one is right click here, and third one is just left click here and you will get the same dialog box. So in this way you can insert a new sheet, you can insert multiple sheets even into your existing spreadsheet. So this was all about multiple sheets. Now we will
discuss how we can insert a sheet from a different spreadsheet. For example, आपके पास एक already existing sheet है, वहाँ की कोई sheet को आप अपने existing sheet में अगर insert करना चाहते हो, then how you can do that one. So let me show you. Suppose we are having these sheets here. Okay, again go back to the same process. You can choose any of the three process. Now here select from file. Okay, now choose any of the existing file. For that you have to click on your browse button. If any existing sheet is there that you have created, so you may select that sheet. I am searching for any calc file, if there is any calc file. Yes, let me take this one and I will open this one. Now it is showing that in that spreadsheet we are having three sheets, sheet 1, sheet 2 and sheet 3. So suppose I am selecting this one and I am clicking this option so that whatever data will be updated in that sheet that will be also reflected here. यहाँ पे अगर लिंक ऑप्शन को हम क्लिक कर देते हैं, मतलब इस शीट में और जो इसका ओरिजिनल शीट जो इसका है, दोनों में एक लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा, ताकि जब आप ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस करो तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा. तो लेट मी प्रेस ओके. तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो डेटा आ रहा है हमारा दूसरे स्प्रेडशीट से जिसकी हमने लिंकिंग यहाँ पे की है. अपडेट ऑल लिंक्स, लेट अस क्लिक यस. Okay, so in this way we can create a new sheet and we can insert a new sheet from another file also. Okay, so I hope this much be clear to you. Moving to the next topic, that how we can rename our worksheets. तो जब रीनेम करने की बात आती है तो हम दो तरीके से रीनेम कर सकते हैं. जैसे हमने अभी देखा था कि हम तीन तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट करते वक्त ही हम रीनेम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन में दिखाया था. ठीक है, अगर ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर लिया है, इंसर्ट करने के बाद अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो पहला तरीका ये है कि हम अपनी जो शीट है उस पर डबल क्लिक करें. दूसरा तरीका है हम उस पर राइट क्लिक करें. और तीसरा तरीका है कि हम अपनी शीट को क्लिक करें और उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाके शीट ऑप्शन पे जाएं और वहाँ पे हम रीनेम ऑप्शन चूज़ करें. तो लेट अस सी वन बाय वन. तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको हम बारी बारी से अपने शीट को हम रीनेम करते हैं. ये जो शीट हमने दूसरे फाइल से इंसर्ट की है, पहले इसे हम रीनेम करते हैं. इस पर हम डबल क्लिक अगर करेंगे, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए शीट का नेम चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास आ गया. अब हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया डेटा एंड वी विल प्रेस ओके. आप यहाँ पे देख सकते हो शीट का नाम डेटा हो चुका है. ठीक है, अनदर वे, अगर इसका हम नाम चेंज करना चाहते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करो. यहाँ पे आप देख सकते हो यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ रीनेम शीट. ठीक है, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाइपर लिंक. ओके, डन. और जो तीसरा तरीका है, हमने ये शीट को यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में. ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे शीट ऑप्शन में और यहाँ पे फिर से आपको रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है. तो दिस इज द थर्ड वे टू रीनेम योर शीट. The same dialog box is coming in all the three ways. Okay, so here I am giving linking. Okay, so in this way we can rename our sheet. So moving to the next topic, हाउ वी कैन क्रिएट और चेंज अ सेल रेफरेंस. जब भी हम काम करते हैं स्प्रेडशीट में या ओपन ऑफिस कैल्क में, हमें सेल रेफरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. सेल रेफरेंस का अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम कौन से वैल्यू को एक्सेस करते हैं. तो सेल रेफरेंस एक पर्टिकुलर सेल का भी रेफरेंस हो सकता है या रेंज ऑफ सेल का भी रेफरेंस हो सकता है. तो कभी हम जब भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें कभी कभी एग्जिस्टिंग शीट से भी वैल्यू चाहिए होती है या दूसरे शीट से भी वैल्यू चाहिए होती है या फिर टोटली डिफरेंट वर्कशीट से भी वैल्यू चाहिए होती है. तो ये हम कर सकते हैं अगर हमने सेल रेफरेंस सही से बनाया हुआ हो तो. तो यहाँ पे भी जब हम रेफरेंस बनाएंगे तो हम दो तरीके से रेफरेंस बनाएंगे. अगर एक ही स्प्रेडशीट के अलग अलग शीट से हमें रेफरेंस बनाना है तो क्या करेंगे, और अगर कंप्लीटली दूसरे हम शीट से
अगर रेफरेंस लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन दैट हाउ वी कैन डू द रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक माउस यूज़ करके और दूसरा कीबोर्ड यूज़ करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब अपने स्प्रेडशीट को, अपने कैल्क शीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स होते हैं। अगर उन 3 शीट्स के आपस में हमें सेल रेफरेंसिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे, और एक कंप्लीट स्प्रेडशीट का दूसरे स्प्रेडशीट से अगर हमें रेफरेंसिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। और दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि माउस यूज़ करके कैसे कर सकते हैं और हम कीबोर्ड यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार होता है, फॉर्मूला बार मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वल टू के आगे ये जो बार है इसे हम कह रहे हैं फॉर्मूला बार, ठीक है, या तो फिर इसे इनपुट लाइन भी कहते हैं। ठीक, तो जब मैं इनपुट लाइन बोलूँ तो आपको समझना आ रहा है कि दिस वन। ओके, तो सबसे पहले हमें इस इक्वल टू को फाइंड आउट करना है, और ये जो हमें फॉर्मूला बार के साइड में जो इक्वल टू साइन मिलता है, जहाँ पे इनपुट लाइन है, जहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे हमें जाना है। और हमें क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। दिस इज द फर्स्ट वे that we are going to create a reference within the mouse। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा शीट में हमारे पास ये सारे डेटा है। ठीक है, और ये जो लिंकिंग शीट है ये बिल्कुल फ़िलहाल खाली है। मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस इन दिस शीट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक दिस वैल्यू। ठीक है, मैं इस वैल्यू को अपने इस शीट में लाना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल रेफरेंस बनाएंगे। सेल रेफरेंस अगर मैं इंडिविजुअल सेल के बारे में बोलूँ तो अगर मैं प्रियंका के बारे में बोलूँ तो प्रियंका का सेल रेफरेंस क्या है, A2। ओके, इसका सेल रेफरेंस क्या है, A2। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इस A2 को हम इस शीट में यहाँ पे लाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, जस्ट यहाँ पे आप इक्वल टू टाइप कीजिए, वापस से हम जाएंगे डेटा ऑप्शन में और मुझे कौन सा सेल का रेफरेंस चाहिए, प्रियंका का चाहिए। अब स्टूडेंट्स see carefully, as soon as I will select this cell you can see here the cell reference has been created automatically, but you have to remember that how the cell reference is being created. You can see first name of the sheet. What is the name of the sheet, data. Data is the name of this sheet, and what is the cell reference, A2. Okay, so in this way the reference is created. Okay, so first name of the sheet and then name of the cell. Okay, now coming back to the sheet where we want the reference, just we will click on this green tick symbol. The value will be reflected here. You can see here the Priyanka has been come over here by the cell reference data.a2. So this is the way to create reference by using mouse. मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माउस यूज़ किया है। अगर यही चीज़ हम कीबोर्ड यूज़ करके करना चाहेंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा, हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, टाइप करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये पहला तरीका था जहाँ पे हमने माउस यूज़ करके किया था। हमने इक्वल टू का साइन अपना डाला यहाँ पे इनपुट लाइन में, जिस शीट से हमें वैल्यू लेना था वो सेल को हमने सेलेक्ट किया, वापस से हम अपने एग्जिस्टिंग शीट पे गए जहाँ पे हमें वैल्यू को अपीयर कराना था और हमने सीधे ग्रीन चेक मार्क को क्लिक किया और वैल्यू हमारा अपीयर हो गया। दैट्स इट। अगर कीबोर्ड से हमें ये सेल रेफरेंस करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो कीबोर्ड से अगर हमें सेल रेफरेंस क्रिएट करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेम वर्कशीट में हम सेल रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे रेफरेंस के दो पार्ट बन रहे हैं। अगर आपको याद हो तो वो दो पार्ट कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला पार्ट है शीट का नाम और दूसरा है सेल रेफरेंस। तो ये दो चीज़ें ही आपको याद रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो द रेफरेंस हैज़ टू पार्ट्स, द शीट नेम एंड द सेल रेफरेंस, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड मीन्स डॉट सिंबल। ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करके आप अलग अलग शीट से वैल्यू को आप यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट यूजिंग कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से अगर हम करेंगे इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टाइप करना होगा। तो हम अब यहाँ पे माउस को यूज़ नहीं करके हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे
अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप डेटा शीट से हम यहाँ पे लाएँ, अगर हम ये जमशेदपुर को लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि शीट का नाम क्या है? डेटा। उसके बाद जमशेदपुर का सेल रेफ़रेंस क्या है? C4, ठीक है? तो इसी फ़ॉर्मूला को हम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल टू डेटा डॉट C4 और हम कुछ वापस से यहाँ पे टिक मार्क करेंगे या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे जमशेदपुर आ गया। तो माउस यूज़ करके भी हम कर सकते हैं और हम यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो काफ़ी आसान था क्योंकि यहाँ पे हम एक ही स्प्रेडशीट में अलग-अलग जो शीट्स हैं, उनके थ्रू हम ये लिंकिंग कर रहे थे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो कैल्क है, इसका नाम है अनटाइटल्ड वन। अब मैं क्या करूँगी कि हम एक दूसरा स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। हम अपना दूसरा स्प्रेडशीट बिल्कुल कंप्लीटली दूसरा स्प्रेडशीट ओपन करते हैं और वहाँ से कोई डेटा लेके हम यहाँ पे लिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या वो पॉसिबल होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे और एक अपने कैल्क शीट को ओपन किया, ठीक है? अब यहाँ से हम कोई भी एक वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। वापस से दोनों तरीके से हम लेंगे। पहला तरीका होगा हमारा यूजिंग माउस, दूसरा तरीका होगा हमारा यूजिंग कीबोर्ड, ओके? तो जब हम माउस के हेल्प से करेंगे तो हमें वही काम करना है जो अभी हमने फॉलो किया था और कीबोर्ड के हेल्प से जब हम करेंगे तो वापस से हमें क्या देखना है कि कौन सा फॉर्मूला जनरेट होता है जब हम माउस यूज़ करके रेफरेंस क्रिएट करते हैं। तो लेट अस सी। वापस से हम जाते हैं अपने अनटाइटल्ड वन में। यहाँ पे हम अपना रेफरेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू को हमने टाइप किया और हमें दूसरे वाले शीट से सपोज मैं ये वाले सेल का वैल्यू लाना चाहती हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब सेलेक्ट करने के बाद हम वापस से अपने उस शीट में आते हैं, ठीक? अब आप वापस से अपने उस शीट में आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक कंप्लीट पाथ बन चुका है। अब ये कंप्लीट पाथ आपको याद रखना है। इस पाथ के अगर आप देखोगे तो ध्यान से इसके कितने पार्ट्स हैं। पहला आपको ये कंप्लीट पाथ बता रहा है जहाँ पे वो स्प्रेडशीट हमारा स्टोर है, ठीक है? तो यहाँ तक तो देखिए आपको फाइल का लोकेशन ही बता रहा है, हमारे फाइल का लोकेशन ही बता रहा है कि वो सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर, एसएस फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूनिट 1 डॉट ओडीएस नाम से स्टोर है। उसके बाद आपको आपके सामने यहाँ पे एक हैश का सिंबल आ रहा है और ये शीट का नाम है सब टोटल डॉट C2, जैसा कि हमारे प्रीवियस केस में हो रहा था। प्रीवियस केस में ये सारी चीज़ें मिसिंग थी, ये अप टू हैश तक चीज़ें मिसिंग थी क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे कंप्लीटली शीट से ले रहे हैं, तो ये एक एडिशनल चीज़ जो बिल्कुल फाइल का पाथ है वो ऐड हो रहा है, ठीक है? तो अब अगर यहाँ पे मैं ग्रीन टिक पे क्लिक करूँगी तो आप देखो यहाँ पे पेंटालून आ चुका है, ठीक है? अब अगर कीबोर्ड यूज़ करके आप करना चाहोगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको क्या करनी होंगी, टाइप करनी होंगी, ठीक है? दिस कंप्लीट थिंग हैज़ बीन टाइप्ड, ठीक है? तो ये तो था अगर हम कंप्लीटली डिफरेंट स्प्रेडशीट से अगर हम ला रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम डिफरेंट स्प्रेडशीट से ला रहे हैं तो हमारे रेफरेंस के 3 पार्ट बन रहे हैं। कौन-कौन से? एक तो पाथ एंड फाइल नेम जो कि इस तरह से मिल रहा है हमें, दूसरा शीट का नाम और तीसरा सेल रेफरेंस, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि तब जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो एक बार माउस से आप क्रिएट करके देख लो। माउस से क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला बन रहा है, उसके बाद कीबोर्ड से ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे इस बार हम चाहते हैं कि हमारा फिलिप्स आए, ठीक है? फिलिप्स के लिए हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसका सेल रेफरेंस क्या है। इसका सेल रेफरेंस है B8, ठीक है? और शीट का नाम क्या है, सब टोटल। फाइल का नाम क्या है, यूनिट 1 डॉट ओडीएस। और वो सेव कहाँ पे है, जहाँ जहाँ अभी हमने देखा था, हमें उसका एड्रेस ऑलरेडी पता है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ला सकते हैं। B8, ठीक है? सेल रेफरेंस हमें B8 को लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे। अगर आपको एड्रेस यहाँ पे याद है आप देख सकते हो, ठीक है? नहीं तो मैं इसे यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉपी कर ले रही हूँ, ठीक है? आप याद रखना। सॉरी,
यहाँ पे इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम B8 लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ सेल रेफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, B8 हो जाएगा, ठीक। बाकी फाइल का लोकेशन हमारा सेम है, फाइल का नाम सेम है, शीट का नाम सेम है, रेफरेंस हमारा अलग है। तो हम ग्रीन टिक पे सिंबल करते हैं, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सामने आ गया है फिलिप्स। तो इस तरह से हम सेल रेफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों ही तरीका दिखा कि अगर एक शीट में ही हमें एक शीट से दूसरी शीट में अगर हम सेल रेफरेंस क्रिएट करना है तो हम माउस और कीबोर्ड यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। एक कंप्लीट स्प्रेडशीट से दूसरे स्प्रेडशीट में अगर हमें सेल रेफरेंस करना है तो हम माउस और कीबोर्ड यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग विथ हाइपरलिंक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपरलिंक्स का काम क्या होता है। हाइपरलिंक्स हमें तब काम में आता है, नॉर्मली हम जब भी वेबसाइट विजिट करते हैं, नेट सर्फ करते हैं, तो ये हाइपरलिंक्स हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचने के लिए हेल्प करता है। तो ये चीज़ हम स्प्रेडशीट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये दूसरे हमें अपने फाइल के ही दूसरे पार्ट तक भी पहुंचा सकता है, ये कम्प्लीटली दूसरे डॉक्यूमेंट तक पहुंचा सकता है, या किसी इंटरनेट की फाइल तक भी हमें पहुंचा सकता है, ठीक है। तो एक लिंक के हेल्प से हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइपरलिंक्स की, तो हाइपरलिंक्स नॉर्मली there are two types of hyperlinks, relative hyperlinks and absolute hyperlinks. So OpenOffice Calc by default provides us absolute hyperlinks. Absolute hyperlinks means it will have the complete address of the file. जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की, तो उसके पास कंप्लीट एड्रेस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक्स की, तो उस वो हमें वो पाथ बताता है, हमें करंट पोजीशन से जिस फाइल को हम कनेक्ट करने वाले हैं वो वहीं तक का पाथ हमें बताता है। तो अगर एब्सोल्यूट लिंक के केस में, अगर जिस फाइल के साथ हमने कनेक्ट लिंक स्टैब्लिश किया है, अगर उस फाइल के लोकेशन को हम चेंज कर देते हैं, या उस फाइल को अगर हम डिलीट कर देते हैं या वहाँ से मूव करा देते हैं, तब हमारी लिंकिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, लिंक हमारा ब्रेक हो जाता है। लेकिन मान लीजिए एक ही फोल्डर में हमारा सोर्स और जो हमारा कनेक्टेड फाइल दोनों ही एक जगह पे सेम है, और पूरे के पूरे फोल्डर को हमने उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं, तो अगर रिलेटिव लिंक उनके बीच में इस्टेब्लिश हो रखा है तो वो वहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। तो अगर हम ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें एब्सोल्यूट लिंक क्रिएट करके देता है, मतलब जहाँ पे कंप्लीट पाथ इस्टेब्लिश होते हैं, और रिलेटिव लिंक मतलब करंट पोजीशन से फाइल का जो पाथ होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव लिंक। तो लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। तो इसके लिए हम वापस से यहाँ पे आते हैं अपने ओपन ऑफिस कैल्क में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्लोब का सिंबल है और यहाँ पे एक चेन लगा हुआ है, दिस इज द सिंबल फॉर हाइपरलिंक। ये हमें इंसर्ट मेन्यू में भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे आप देखो, गो टू इंसर्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन हाइपरलिंक, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटरनेट का, ठीक है। तो इंटरनेट ऑप्शन में मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे cbsc.nic.in के लिए मैं एक हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रेम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्म बना रहे हैं, इसलिए हम फॉर्म के साथ काम करेंगे, ठीक है। और एक टेक्स्ट आएगा हमारे सामने जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टारगेट क्या है, www.cbsc.nic.in ओपन हो जाना चाहिए। टारगेट मतलब वो फाइल जिसके साथ आप लिंक स्टैब्लिश कर रहे हैं। और किस चीज़ पे हम क्लिक कर रहे हैं, हम एक टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। टेक्स्ट पे क्या लिखा होना चाहिए, टेक्स्ट पे सपोज मैं लिख दे रही हूँ कि वहाँ पे क्लिक मी लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको 1 मिनट, मैंने जस्ट मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। मैं पहले यहाँ पे दूसरी शीट में हम बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। अगेन गो टू इंसर्ट, गो टू हाइपरलिंक, यहाँ पे हम इंटरनेट पेज के साथ बनाते हैं cbsc.nic.in। नॉर्मली हम वेब ही यूज़ करते हैं, ये FTP टेलनेट हमारे इस पर्पज़ से यूज़ नहीं होंगे अभी। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ एक टेक्स्ट आ जाए क्लिक मी, जिस पे क्लिक करने से हम कहाँ पे मूव करें,
इस साइड को हम मूव कर जाए। तो मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ, आप देखो यहाँ पे क्लिक मी का ऑप्शन आ गया और हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप जैसे ही अपने माउस को यहाँ पे मूव करोगे, आप देखो हाइपरलिंक वाली सिंबल आ जाती है, ठीक है। तो एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दिस वन, ओके, यू विल बी मूव टू द अनदर लोकेशन, जो कि आपका cbse.nic.in आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम एज पर योर इंटरनेट कनेक्शन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, और वो साइट आपका ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने हाइपरलिंक कर दिया है, ठीक। तो इट इज़ टेकिंग टाइम एज पर माई इंटरनेट स्पीड, so it is quite slow, so let it be open। हाँ, you can see here that the site is opening, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वेब पेज के साथ हाइपरलिंकिंग स्टैब्लिश की है। तो ये तो एक पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने लिंक स्टैब्लिश कर लिया। अगर इसे हमें एडिट करना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब जब भी आप इसे क्लिक करोगे, ये हर बार क्या हो रहा है, ये पेज ओपन हो रहा है। तो आप क्या करना, इसके एडजेसेंट सेल पे कहीं पे भी क्लिक कर लेना, उसके बाद कीबोर्ड के हेल्प से जो एरो बटन्स होते हैं उसके हेल्प से वहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है। और वापस से हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट हाइपर लिंक पे हम जाएंगे। आप देखो वही पेज ओपन हो गया। अब इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो, अपना टारगेट फाइल चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, इसके टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, ओके। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक और यू कैन एडिट हाइपरलिंक, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कंप्लीटली डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट रिमूव द लिंक, इट विल बी डिलीटेड, ओके। तो ये तो था कि अगर हम टेक्स्ट यूज़ करके हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, और एक तरीका हम देखते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं हम। सो अगेन गोइंग टू इंसर्ट ऑप्शन, गोइंग टू हाइपरलिंक ऑप्शन, इन दिस नाउ वी आर गोइंग टू, ये ऑप्शन है मेल्स एंड न्यूज़ का। अगर आप अपने किसी मेल सर्वर से आप लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, किसी न्यूज़ लिंक से आप क्रिएट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप किसी कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ वेयर यू कैन क्रिएट योर हाइपर लिंक टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और अ टारगेट विद इन द डॉक्यूमेंट। अब अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन देगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप वो पाथ चूज़ करो जहाँ से आप लिंकिंग स्टैब्लिश करना चाहते हो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है। अगर आप किसी कंप्लीटली दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन में जाना होगा, ठीक है। आप देखो अगर आप इस ऑप्शन में इसको क्लिक करते हो मतलब आप कि सिस्टम में कोई और फाइल है, अगर उसके साथ अगर आप हाइपरलिंक स्टैब्लिश करना चाहते हो तब आपको ये ऑप्शन में जाना होगा। अगर आप टारगेट इन डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हो तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो ये शीट्स हैं उसके साथ आप लिंकिंग स्टैब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन में वो शो ही नहीं करेगा। देखिए मैं आपको शो दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ क्लिक कर रहे हो आप देखो आपको यही सारे शीट्स वो दिखाएंगे जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में फ़िलहाल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप किसी में भी अगर आप एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के शीट्स के साथ अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं आप टारगेट इन डॉक्यूमेंट में जाइए। अगर कंप्लीटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप हाइपरलिंकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको बताऊँगी कि कंप्लीटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट के साथ अगर हमें हाइपरलिंकिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले अगर हम एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस मर्ज फाइल के साथ करती हूँ। लेट अस क्लिक ओपन। लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि टेक्स्ट क्रिएट करके हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है। अभी मैं बताती हूँ कि बटन क्रिएट करके कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे बटन और वापस से आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट उस बटन पे अपीयर करवाना चाहते हो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ, मान लीजिए आप लिखिए सबमिट, ओके। मैंने यहाँ पे सबमिट लिखा, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एंड क्लोज, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्वायर बटन्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं, इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन बटन्स दिख रहे होंगे लेकिन ये अभी काम नहीं करेंगे। ये अभी
आप देखो वो हैंड सिंबल अभी तक नहीं आ रहा है, ये आपको बात तो बता रहा है कि ये कौन से फाइल के साथ हाइपरलिंक हुआ है। आप देख सकते हो कि ये merge.ods के साथ हाइपरलिंक हुआ, बट ये अभी फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए आपको एक काम करना होगा। आप देखो यहाँ पे, पहले मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। आपको एक टूल बार लाना होगा जो कि हमें मिलेगा यहाँ से। व्यू में आप जाना, टूल बार्स में जाना, आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स ऑप्शन में जाना। ठीक है, अब ये फॉर्म कंट्रोल में जाने से ऐसा एक टूल बॉक्स आपके सामने इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो फिलहाल हमारा डिज़ाइन मोड ऑन है। आपको ये डिज़ाइन मोड को ऑफ कर देना है। अब देखो, नाउ दिस बटन हैज़ बिकम क्लिकेबल। अब आप इसको क्लिक करोगे तो इट विल वर्क लाइक बटन। अब जब हम इसे क्लिक करेंगे, एक दूसरी फाइल जिसका नाम है merge.ods वो ओपन हो जाएगी। तो हम इसे क्लिक करते हैं, आप देखो merge.ods ये फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। तो हम एक टेक्स्ट को यूज़ करके भी हाइपरलिंक बना सकते हैं, एक बटन को यूज़ करके भी हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही तरीक़ों से आप हाइपरलिंक बना सकते हो। अगर वापस से आपको डिज़ाइन मोड में जाना हो एडिटिंग करने के लिए, तो वापस से हम इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। अब आप देखो कि वापस से ये एडिटिंग मोड में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। और एक तरीका है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम डेटा लिंक करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप डेटा को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। या अगर आपको मैं आपको पहले बताती हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि, एक मिनट, जस्ट सेलेक्ट अनदर, गो टू नेक्स्ट शीट। यहाँ पे हम दिखाते हैं, अगर हमें एक्सटर्नल डेटा से लिंक करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। अब आप यहाँ पे ब्राउज कीजिए कि आपको कौन से डेटा के साथ लिंक क्रिएट करनी है। यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, जिस भी डेटा से आप लिंक करना चाहते हैं आप उस डेटा से कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान लीजिए ये वाला फाइल मैंने एक लिया। ठीक है, और मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो अब ये देखिए, आपको यहाँ पे आप पीडीएफ के साथ भी लिंक कर सकते हैं, आप दूसरे एक्सेल शीट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे हम किसी एक्सेल शीट या किसी कैल्क के साथ अगर लिंक करेंगे तो ये आपको वही चीज़ें दिखाएंगी जिनका रेंज हमने डिफाइन कर रखा है। अगर आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में हमने जब डिस्कस किया था, हमने सॉल्वर गोल से ये सब, जब हम कंसोलिडेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम रेंज कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी शीट में आपका ऑलरेडी क्रिएटेड रेंज है तो वो उस रेंज को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और वही रेंज आपका यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो लेट अस सी कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, लेट अस सर्च फॉर दैट वन इफ वी रिमेंबर द नेम। It was linking data or spreadsheet or it was something else. Let us see, we have already opened that one. I think it was unit 1. Okay, so अगर ऐसी कोई शीट जहाँ पे हमने रेंज ऑलरेडी बना रखी थी तो आप देखो यहाँ पे वो रेंज आपको दिखाएगा और आप इन दोनों में से कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सपोज मैंने रेंज 1, अगर आप देखोगे कि मैंने वो फाइल भी खोल रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल है हमारा। ठीक है, और शीट 1 मैंने सेलेक्ट किया था, ये मेरा रेंज 1 था और ये है मेरा रेंज 2। ठीक है, तो मैं सपोज़ रेंज 1 को वहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ तो मतलब ये हमारे जो PT1 के जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, ये वाले मार्क्स वहाँ पे आ जाएंगे। तो कमिंग बैक टू दैट शीट, यहाँ पे मैं रेंज 1 को सेलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पे अपडेट एवरी कितने सेकंड्स के बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाए। मान लो आप ओरिजिनल शीट पे कोई चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे आपने 60 सेकंड्स दे रखा है तो 60 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप वहाँ चेंज करके सेव बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं 30 सेकंड्स तक।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, लेट मी रिड्यूस इट टू 30 सेकेंड एंड आई एम प्रेसिंग ओके। आप देख लेना यहाँ पे वो मार्क्स तो आ गए। ठीक है, अब हम वापस से इसके जो ओरिजिनल शीट है वहाँ पे हम जाते हैं, हम कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने लाया यूनिट 1 से। अब यहाँ पे आप देखो रिया के मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश के मैं इसको कर देती हूँ 85, और यहाँ पे मैं 85 करने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के 30 सेकेंड्स के बाद ये चेंज वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम वापस से इस शीट में जाते हैं। ये 80 हमने 85 से रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देखो जस्ट 30 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिक ही ये क्या हो गया, 85 हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, जब भी हम लिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये अपडेशन ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट लिंकिंग, रेफरेंसिंग डेटा और शीट्स और completely different document. ठीक है, so I hope this will be clear to all of you. If you find my video useful, then don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.